Your Excellency the Bishop, all the fathers and brothers, and my dear congregation of Narwal. Today we are gathered here to honor our Mother Mary, who was the only person representing all our mothers at the foot of Jesus. There have been many mothers in the world, and no mother is like Holy Mother, who is also our mother. Holy Mother was born to a very rich family of the kings of St. Joachim and St. Anne. She was already offered in the temple by her parents at the age of 3. She was born in the most powerful and influential ruling families of the time. She is a combination of spirituality and honor, and simultaneously humble and obedient. She became the perfect example of love and obedience to God. Hello. She lived the word of God in total obedience. She fulfilled the commandments of God. She suffered with Jesus in his passion with total submission to God's will. She took part in the passion and death of Jesus and was standing at the foot of the cross when she was crucified. Mary, our mother, is the advocate, mediatrix, and co-redemptrix in our redemptive plan. Today she is crowned to honor her humble submission to God's will, and she is glorified throughout the world for the honorable and dedicated life she led for the Christian community. I would offer also a small prayer together with this. Let us all bow our heads and take part in this prayer. Lord Jesus Christ, Son of the Father, send now your Spirit over the earth, that they may be preserved from degeneration, disaster and war, lack of faith and misunderstanding, that the Lady of all nations, who once was Mary, be your advocate, mediatrix and co-redemptrix. And we praise you, Holy Mary, Mother of Jesus, and all of us. We thank you for all your blessings. We praise you, we honor you, we worship you. May the Lord, born of Mary, be the redemptive power of the Christian community. We pray that the honor of Mary is always and everywhere honored more and more for the glory and honor of redemption of manhood.
ہاؤس ناروال میں 10ویں سالانہ تاج پوشی کے لیے جمع ہوئے۔ یہ کیتھولک ایمان میں بہت فخر کی بات ہے کہ خدا باپ ہمیں یہ موقع عطا کرتا ہے کہ ہم زمین پہ رہتے ہوئے فرشتوں کی مانند اس کی ماں کو عقیدت اور سلام پیش کر سکیں۔ آج کی تینوں طلعاتیں ہمیں بہت ہی پرمعنی طریقے سے ایمان کی تقویت عطا کرتی ہیں اور ایمان کی مضبوطی عطا کرتی ہیں۔ آج کی خصوصی پاک ماس میں، جو کہ شکر گزاری کی پاک ماس مقدسہ مریم کے حضور رکھی گئی ہے، آج کی پاک ماس میں خصوصی دعا کریں گے لوک ایلیسن کی اچھی صحت کے لیے، جو کہ بیمار ہے۔ خدا باپ جو معجزات کرنے والا خدا ہے، مقدسہ مریم کی سفارش سے انہیں اچھی صحت اور درازی عمر کی عطا کرے۔ ساتھ ہی ساتھ آج کی پاک ماس میں ہم عبادت کریں گے روشنی خرم کے لیے کہ خدا باپ انہیں اچھی صحت عطا کرے اور ان کی تمام نیک خواہشوں کو اپنے الہی خزانہ سے پورا کرے۔ اور آج خصوصی طور پہ شکر گزاری کی یہ پاک ماس گزرانے گے ناروال کی کلیسیا کے لیے کہ خدا باپ آج کی اس رسم تاج پوشی کے وسیلہ سے ان سب لوگوں میں ایمان کی مضبوطی لے کے آئے اور انہیں سچے پیروکار بننے کا فضل عطا کرے تاکہ پاک رسم واجب طور پر ادا کر سکے۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے حالوں اور کاموں کی غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ گواہی سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا ہماری گناہ سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ اے خداوند رحم کر۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم دعا مانگے۔ اے قادر مطلق بابا، آج ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ اے خدا حضرت جماعت سب کو برکت دے۔ ماں مقدسہ مریم کی بابت آج جتنے لوگ آئے ہیں، خداوند سب برکات حاصل کر کے جائیں۔ اگر کوئی بیمار ہے وہ شفا حاصل کر کے جائے، پریشان ہے تو خداوند خوش ہو کر جائے۔ اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو خدا تمام حاضرین جو موجود ہیں خدا وہ برکات حاصل کر کے جائیں۔ اور اے خدا آج کا کلام جو ہماری زندگی میں پڑھا جائے وہ سو گنا ہماری زندگی میں پھل لائے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے آج کی ہماری پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا 3 باب 14ویں تا 15ویں آیت مقدسہ تک۔ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، چونکہ تو نے یہ کیا، ملعون ہے تو تمام چرندوں اور درندوں میں، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی زندگی کے تمام ایام تو خاک چکھے گا۔ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان وہ تیرے سر کو کچلے گی۔ خداوند کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج کی دوسری تلاوت مکاشفہ کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 19 آیات سے 12ویں باب کی 6 آیات مقدسہ۔ اور خدا کی ہیکل آسمان پر کھل گئی، اور اس کے ہیکل میں اس کے عہد کا صندوق نظر آیا، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجے پیدا ہوئیں، اور زلزلہ آیا اور بڑے بڑے اولے پڑے۔ پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا، یعنی ایک خاتون جو سورج کو اوڑے ہوئے تھی، اور جس کے پاؤں کے نیچے چاند کے اور سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا۔ وہ حاملہ تھی
اور تکلیف میں ہو کر دردزار کے سبب سے چلاتی تھی۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، اور دیکھ سرخ رنگ کا ایک بڑا اژدہا، جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور 7 تاج اس کے سر پر تھے، اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستاروں کو کھینچ کر زمین پر گرا دیا۔ پھر اژدہا اس خاتون کے آگے جس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا جا کر کھڑا ہوا، تاکہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے نگل جائے، اور اس کے ہاں نرینہ فرزند ہوا جو لوہے کے آسا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا فرزند خدا اور اس کے تخت کے پاس تک اٹھا لیا گیا، اور وہ خاتون بیابان میں بھاگ گئی جہاں خدا نے اس کے لیے جگہ تیار کی ہے، تاکہ وہ 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری بمطابق مقدس لوکا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے پہلے باب میں سے۔ اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا کلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے سے ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیرے رشتے دار الصبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو 5 کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ عزیز مومنین، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خدا باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے ہم سے محبت رکھی اور پاک روح کی صورت میں ہمیں یہ دلیری اور جرأت بخشی کہ ہم اس کا پاک نام لیں بھی اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہر دل عزیز ہمارے بشپ مشتاق اینڈریو صاحب کا، اور تمام فادر صاحبان کا، بردرز کا، اور آپ سب کا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور آج کی اس عبادت میں شامل۔ آج ہم مقدسہ مریم کی تاج پوشی کے حوالے سے یہاں پہ، اور سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ لوگ
जब हमें देखते हैं, इवन के हमारे कुछ क्रिश्चियंस जो अपने आप को पासबान ही कहते हैं, वो कहते हैं कि ये कैथोलिक चर्च हमारे लिए जिल्लत का निशान है, ये कैथोलिक चर्च हमारे लिए बेइज्जती का निशान है। जब लोग हमें कहते हैं कि क्रिश्चियंस बुत परस्ती करते हैं, तो वो कैथोलिक्स का हवाला देते हैं। वो कहते हैं देखें, वो जाके मुकद्दसा मरियम के सामने झुकते हैं, उसे दुपट्टे चढ़ाते हैं और फिर इस तरह से हार पहनाते हैं, ताजपोशी करते हैं। तो इन सब कामों की वजह से वो कहते हैं हमारे सर झुक जाते हैं। लेकिन आज हम इस बात को समझेंगे, आज हम इस बात को सीखेंगे कि हकीकत में इसके अंदर हिकमत क्या है। कौन सी ऐसी हिकमत, कौन सी ऐसी फिलॉसफी है कि जिसकी वजह से हमें ये करना है। खुदा का हुक्म जब भी होता है तो उसके साथ हिकमत मौजूद होती है। खुदा कोई भी ऐसा काम करने के लिए नहीं कहता जिसे अंडरस्टैंड ना किया जा सके, जिसे समझा ना जा सके, जिसमें गहराई मौजूद ना हो, जिसमें हिकमत मौजूद ना हो और जो हमारे लिए बरकत का वसीला ना हो, हमारे लिए खुदा के फजल का मौजब न ठहरे। खुदा कभी भी कोई भी ऐसा हुक्म सादर नहीं फरमाता। आप जरा गौर करें, खुदा ने इंसान को बनाया किसकी छवि पर? हाँ जी, किसकी छवि पर? किसकी छवि पर? तो इंसान खुदा की छवि पर बना। इसका मतलब है खुदा हकीकत है और ये जो बना वो क्या है? हकीकत की नकल। हकीकत की नकल। इसका मतलब है हम जितने भी हैं यहां पे, हम सब एक हकीकत की नकल है। तभी जरा इब्रानियों में जाएं, 8वें बाब की 30वीं आयत में, तो वहां लिखा हुआ है कि काहन क्या करता है? वो नकल की खिदमत करता है। किसकी खिदमत करता है? नकल की। क्यों नकल की खिदमत करता है? क्योंकि हम सब ही नकल है। हम तमाम के तमाम एक नकल है, हकीकत की नकल है और इस नकल की हमें आगे खिदमत करने की जरूरत होती है। हम तमाम के तमाम एक नकल में रहते हैं। हकीकत कहाँ पे है? आसमान पर, और लिखा हुआ कि नया यरूशलेम है, और हम फिर इस जमीन से हकीकी जगह पे जो है वो चले जाएंगे। और जब हम हकीकी दुनिया में जाएंगे तो वहां पे फिर हकीकी इबादत करेंगे। अब इसे खुदा ने कैसे किया? खुदा ने जब इबादत को पूरे तौर पर राइज किया, खैमा इज्तिमा का आगाज किया, और खुदा ने जब चाहा कि लोग प्रॉपर वे में मेरी इबादत करें, तो फिर खुदा ने क्या किया? खुदा ने मूसा से कहा, क्या कहा? कि जैसा तूने कहाँ देखा है आसमान पर नक्शा देता, वैसा ही तूने क्या करना है? जमीन पर बनाना है। यानी कि आसमानी चीजों की जमीन पर क्या करनी है? नकल करनी है, और उस नकल को क्या करना है? तैयार करके वहां पे इबादत करनी है। और उस नकल में सबसे जो जरूरी नकल हमें दिखती है वो है क्रोबी। क्या है जी? क्रोबी। अब ये क्रोबी क्यों बना? खुदा कहता है कि मैं इनके दरमियान से होकर तुमसे क्या करूंगा? बात। खरूज 25, मैं इनके दरमियान से होकर तुमसे बात करूंगा। क्योंकि ये जो क्रोबी, ये इस बात की अलामत है कि जो ऊपर असल है उसकी एक नकल है, और इस नकल से उस असल तक का आपने फासला देखा। आपको इस नकल में से होकर असल तक पहुंचना, और अगर आप इस नकल में से नहीं गुजरेंगे तो आप असल तक नहीं पहुंच सकेंगे। अब कोई सोचेगा कि ठीक हो गया जी, ये बात हमारी समझ में आ गई, लेकिन
ऐसी नकलें तो बहुत सी जगह पे मौजूद हैं, हिंदुओं में भी हैं और भी बहुत से मज़ाहब में हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे? वो भी तो यही कर रहे हैं, वो भी तो यही कर रहे हैं। अब हम किसकी शबीह पे बने? खुदा की। नकल किसके साथ जुड़ी है? असल के साथ। और अगर नकल असल के साथ ना जुड़ी हो तो वो नकल नहीं। इब्लीस चूंकि असल नहीं है, इब्लीस की शक्ल पे हम बनाए नहीं गए, इब्लीस की तरह हम बनाए नहीं गए, हम इब्लीस की वजह से बनाए नहीं गए, बल्कि इब्लीस चाहता था कि ये नकल तैयार ना। तब क्या हुआ? अब जो लोग इब्लीस की शबीह पर नकल तैयार करते हैं वो असल से हट जाते हैं। तो खुदा कहता है कि ऐसी नकल तैयार नहीं करनी। अगर आप ऐसी नकल तैयार करेंगे तो वो असल से चूंकि हट कर होगी, इस वजह से वो काबिल कबूल नहीं होगी और तुम उसकी खिदमत नहीं कर सकते। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और आप उसकी नकल तैयार करना चाहते हैं, कॉपी बनाना चाहते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल था आपने उसकी नहीं बनाई बल्कि किसी और डॉक्यूमेंट की कॉपी ली और आपने वो जाके सबमिट करवा दी, तो क्या होगा? वो काबिल कबूल नहीं हो, वो रिजेक्ट हो जाए। इसी तरह से जो लोग भी ऐसे मुजस्समे तैयार करते हैं, ऐसी तस्वीर तैयार करते हैं, ऐसी चीजें तैयार करते हैं जिनका असल के साथ ताल्लुक नहीं होता, वो यकीनी तौर पर खुदा की निगाह में रिजेक्ट हो जाए। और खुदा क्या कहता है कि तुम मेरे हुजूर, किसके हुजूर? मेरे हुजूर, किसी गैर माबूद यानी कि मेरे होते हुए किसी और की शबीह तो किसी भी सूरत में नहीं बना सकते। अब कोई कहेगा नहीं, वहां तो लिखा हुआ है कि ना ऊपर आसमान में कोई चीज होनी चाहिए, ना नीचे जमीन में होनी चाहिए, ना समंदर में होनी चाहिए। तो हमें कलाम को गौर से पढ़ने की जरूरत। जब तस्नीह शरा में 12वें बाब में खुदा ने ये कहा कि तू उनके मजहबों को ढा दे, उनकी ये सीरतों को खत्म कर दे, तो क्या कहा? मेरे साथ ऐसा न कर। मेरे साथ ऐसा क्यों? इसलिए कि वो नकल की नकल है, किसी हकीकत के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरी हैकल में जो चीजें मौजूद हैं वो असल में असल की नकल। क्या है? असल की नकल। मरियम दे नाम दी आवाज बड़ी कम है। आप सबकी फादर जी का लेक्चर देखे बड़ी तफसील से समझा रहे हैं। बोलो मुकद्दसा मरियम दे नाम दी। जब हम मुकद्दसा मरियम की शबीह बनाते, इनका इमेज बनाते, इनका मुजस्समा बनाते, तो इसके अंदर जो हिकमत है, बाकी तो मैं समझ आई कि यीशु मसीह की बना लें। क्यों? क्योंकि उसी की शबीह पर हम बने हुए हैं, तो जमीन पर नकल होना जरूरी है। मुकद्दसा मरियम की होना की, यीशु मसीह की अगर हम नकल तैयार करते हैं जमीन पर, तो बात की समझ आती है कि ओरिजिनल की एक नकल यहाँ पे तैयार करनी है और हमने उसी की इबादत भी करनी है, क्योंकि नकल में हम रहते हैं और नकल की इबादत करके हमने असल तक पहुँचना है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं हो सकता। तो मुकद्दसा मरियम का इमेज क्यों बना? इसकी क्या जरूरत पेश है? हम मुकद्दसा मरियम का मुजस्समा बनाकर इनकी अकीदत क्यों करेंगे? क्योंकि खुदा अपने लोगों को जो उसके साथ प्यार करते हैं, जो उसके साथ मोहब्बत करते हैं, जो उसके साथ साथ चलते हैं, उन्हें अपनी तरह की इज्जत देता है। कैसे इज्जत देता है? अपनी तरह की ऐसी इज्जत देता है कि यूं लगता है गोया खुदा ही है, ऐसी इज्जत। अब आप कहेंगे ये कैसे, कहां लिखा हुआ? तो अगर हम खुदा के कलाम पर गौर करें तो शागिर्द यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं, खुदा हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, अपने माँ बाप छोड़ दिए,
तमाम चीजों को छोड़ दिया और हम आपके पीछे हो गए। बताएं कि हमें क्या मिलेगा, हम क्या पाएंगे? तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम इस्राएल के 12 कबीलों का क्या करोगे? इस्राएल के 12 कबीलों का इंसान। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ कि तमाम कौमें खुदा के सामने हाजिर होंगी और खुदा उनका क्या करेगा? साफ करेगा। अब इंसाफ कौन कर सकता है? हम क्या सीख रहे हैं? यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम क्या करोगे? इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ। लेकिन इंसाफ तो सिर्फ खुदा कर सकता है। तो दर्जा कौन सा मिला? खुदा का। दर्जा कौन सा मिला? खुदा का। जब हम ये काम करते हैं तो खुदा ने क्या किया? एक ऐसी खातून जिसने खुदा के हुक्म को इस हद तक माना कि उसने कहा मैं अपने कमारपन का लिहाज नहीं करूं, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं खुदा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं और मैं खुदावंद अपने खुदा के लिए अपने आप को पेश करती हूँ। कहते हैं देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के और क्या होता है? खुदा कहता है ठीक, मैं तुझे वो दर्जा दूंगा जो दर्जा मैंने खुद दे दिया, मैं तुझे वो मुकाम दूंगा जो हकीकी मायनों में मुझे ही सूट करता है। और जिस तरह की इज्जत, जिस तरह के रिस्पेक्ट मैं चाहता हूं कि लोग मुझे दें, मैं तुझे वैसी इज्जत दिलवाऊंगा, उस तरह का एहतराम दिलवाऊंगा। ये एक फिलॉसफी है, ये अंदर की बात है जिसे हमें समझने की जरूरत। खुदा अपने लोगों को इज्जत देता है और उनकी इज्जत बढ़ाता है। इज्जत तेरी बतावेगा याकूब दा। खुदा अपने लोगों को इज्जत देता है यहां पर भी और आसमान। तभी लिखा हुआ है फिर मैंने आसमान पर क्या देखा? एक औरत को देखा। क्या किया हुआ था उसने? सूरज को और चांद उसके और 12 सितारों का। अब देखिए, देखा मैंने ऊपर। किसने देखा? यूहन्ना आरिफ। अब यूहन्ना ने ऊपर देखा तो जमीन पर क्या बनानी पड़ेगी? वही जैसी हमने पहले देखी कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। तो अब खुदा ने हमें दिखाया, ऑनर देखें, इज्जत देखें, रिस्पेक्ट देखें, ताल्लुक देखें कि खुदा किस तरह से अपने लोगों को इज्जत देता है। खुदा ने आसमान पर शबीह बनाई। मूसा से कहा जैसी हैकल तूने आसमान पर देखी है वैसी ही जमीन पर बना डाल। हमें कहा कि जैसी शबीह मुकाशफा में देखी है वैसी ही जमीन पर। बोलो बोलो मुकस्समा मरियम दे नाम दी, मुकस्समा मरियम दे नाम दी। और उसी तरह की इज्जत करो, उसी तरह का एहतराम करो जिस तरह का हैकल करते, उसी तरह से चलो जैसे अहद के संदूक को लेकर चलो। जैसे अहद के संदूक को उठाकर चलते थे वैसे ही इसे भी उठा। जैसे उसके सामने सामने दुआ करते जाते थे इसके सामने सामने भी दुआ करते। जैसे उसके सामने गाते गाते जाते थे वैसे इसके सामने भी गाते जाओ। और बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी आबरू के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ उसी तरह से सजाओ। और जहां ये रखोगे उसी तरह से जैसे अहद के संदूक को रखने से आप जीत जाते थे, जंगें जीत जाते थे, मसाइल जाते थे, बीमारियां जाती, परेशानियां जाती, वैसे जहां इसे रखोगे आपके दरमियान से तमाम तरह की बलाएं। बोलो बोलो कसम मरियम के नाम दी। आपके दरमियान से तमाम तरह की परेशानियां जाती रहेंगी। ऐसा ही नहीं है। आप देख लें जहां कहीं भी ताजपोशी होगी, जहां भी मुकस्सा मरियम के मेले के हवाले से बात होगी, ज़ियारत के हवाले से बात होगी, जो भी अकीदत के साथ जाएगा उसकी मुराद पूरी क्यों होगी? इसलिए क्योंकि ये वो अहद का संदूक है जो नया और जिससे वो कुछ भी हो सकता है जो पहले अहद के संदूक से नहीं हो सकता।
क्योंकि अब राब्ता और ज्यादा मजबूत हो गया। दरमियान में हायल रुकावट, दरमियान में हायल वो तमाम की तमाम दीवार, वो पर्दा फट चुका और हम और ज्यादा खुदावंद की। इसलिए हमें जब हम ताजपोशी के प्रोग्राम में आए, जब कभी भी, तो इसे प्रोग्राम नहीं समझना। यह एक इबादत है, एक ऐसी इबादत है जिसे खुदा ने पसंद किया। ये वो इबादत आम बात नहीं। आप आए, आपने देखा कि यहाँ पे मुकद्दस मरियम का मुजस्समा है और आपने कहा कि अच्छा इस पर कुछ चादर चढ़ा देते हैं। ये ऐसा नहीं है। ये इंतहाई ज्यादा अकीदत की जगह। ये जितनी भी इबादतें हम करते हैं सबसे बड़ी इबादत है, इसलिए क्योंकि इसमें हम खुदा के हुक्म को पूरा करते हैं कि जैसा तूने आसमान पर देखा है वैसा जमीन पर बना डाल, और उसकी फिर क्या कर, खिदमत कर। उसकी क्या कर, खिदमत कर, क्योंकि लिखा हुआ है वो नकल की क्या करते हैं, खिदमत करते हैं। और आज आप लोग मुबारक हैं क्योंकि आप इस खास इबादत में शामिल, और चूंकि खास इबादत में शामिल है तो खास बरकतें भी आपको मिलेंगी। अगर आप यकीन करेंगे, अगर आप भरोसा रखेंगे, अगर आप तवक्कुल करेंगे, तो आज यकीन कीजिए आपको वो तमाम की तमाम बरकतें मिलेंगी जो आप सोच कर आए, जो अपने जहन में लेकर आए कि मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी और माँ से जब शिफायत करूंगी तो खुदा सुनेगा। यकीन कीजिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये शिफायत कुछ नहीं होती है, खुदा डायरेक्ट देता है। इसराइल जब बियाबान में थे, उन्हें खाना किसने दिया, किन्हें देता जी, कैसे, फिर क्या किया, मन उतारा। उसके बाद लोग गए, लोगों ने उससे क्या किया, इकट्ठा किया, फिर उसकी चपातियां बनाई। हाँ, खुद क्या खुदा ने खुद बनाई है। अच्छा, खुदा जो इवन के सबसे ज्यादा हमारे पास तो एग्जांपल यही है ना कि डायरेक्ट खुदा ने दिया, लेकिन वो भी दिया तो आपको जाकर इकट्ठा, बटेर भेजे तो आपको उन्हें ज़िबा करना, फिर आपको उन्हें पकाना पड़ा, फिर आपने उसे खाया। डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता, इनडायरेक्ट चीजें आती हैं और फिर आप तक बहुत से रास्तों से होकर पहुंचती हैं। आप खुदा से कहें, खुदा मेरे रिज़्क़ में इजाफा, कैसे होगा, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, हाँ? या कहीं और जगह से कुछ आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आएगा किसी वसीला से, डायरेक्ट तो नहीं आएगा। क्या खुदा तुम पैसे सुटने शुरू कर, नहीं, क्या करेगा, वो कोई वसीला तैयार करेगा। क्या करेगा, तो खुदा हमेशा वसीलों ही से काम करता है, ताकि अगर मरना भी हो, वापस भी बुलाना हो, तो बगैर वसीले के, और खुदा ऐसे वसाइल निकालता है कि जिलावतन उसके हाथ से निकाला हुआ ना हो। दूसरा सिंबल 14वां, उसकी 14वीं। तो देखिए, खुदा अपने पास बुलाने के लिए भी वसाइल का इस्तेमाल करता है और अपने साथ जोड़ने के लिए भी वसाइल का इस्तेमाल करता है। तभी वो मुकद्दसीन को इज्जत देता है, ताकि उनके वसीला से हम खुदा के साथ जुड़े रहें। खुदा मुझे और आपको अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
ये वाकई बहुत दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक कवारी मरियम की याद में तेरी हम्दो सना करें। उसने रूह कुदस के साए से तेरे इकलौते बेटे को हमल में लिया। वो कवारपन की जलील हालत को खोए बगैर अज़ली नूर यानी यीशु मसीह हमारे खुदावंद को दुनिया में लाए, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुक़द्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्दो सना करते हैं, कदूस 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 खुदा लशों का खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आल में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। आल में बाला पर होशाना। जमात बैठेगी और जो घुटने टेक सकते हैं वो टेक सकते हैं। ऐ मेहमान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुबारक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी दी। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ऐ मेरे खुदा, इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया था। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस आए बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर। ऐ आसमानी बाप, सब बिशपों, काहिनों और डिकनों को और ख़ासकर अपने खादमों, हमारे मेट्रोपॉलिटन मार्क हेवलिन और हमारे बिशप मुश्ताक एंड्रियो को ऐसी तौफीक दे कि वो तेरे सच्चे और ज़िंदा कलाम को अपनी चाल चलन और तालीम से ज़ाहिर करें। तेरे पाक साक्रामेंटों को वाजिब तौर पर अदा करें। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत ता फरमा। हमारे भाई और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूम को याद कर और उन्हें अपने रोशनी में कबूल फरमा। अब तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम मुबारक रसूल और सब मुकद्दसों के साथ इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो, जो तेरे बेटे हमारे यीशु मसीह के वसीले से तेरे हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ खुदा का को रूह कुदस की वाहदानियत में कामिल इज़्ज़त और अज़ीम शयान है।
हमेशा से हमेशा तक आमीन। अपने कदमों पर खड़े होकर उसी तरीके से दुआ मांगेंगे जो खुदावन यीशु मसीह ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती रिथार बल जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हम मसीह खुदावंद में एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, हम तुझसे इंतजार करते हैं, तेरे पाक की शराब हमारे लिए फतवा या सजा का बाइस न फल के तेरी रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म और रूह की हिफाजत करे और हमारे लिए दायमी अनाज साफ। यह है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ क्या ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का बदन हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज है। आमीन। सब बैठेंगे, एक साइबोरिया। तेरी
सेंट मेरी चर्च की तरफ से, बिशप जी की तरफ से, फादर साहब की तरफ से, तमाम डीकन बाबू जी की तरफ से, सभी की तरफ से तमाम आए हुए मेहमानों का शुक्रिया। और आखिर पे ये भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब ने जो वक्त पे आके हमारा साथ दिया, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो तालियां बजाई हैं ना, खास करके आपने बुझी बुझी सी तालियां, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जोरदार